اس کی 49 آیت ہم دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم جیسے جیسے کلام میں آگے بڑھیں گے ہم اس میں سیکھیں گے کہ واقعی آج وہ وعدہ پورا ہوا ہے یا نہیں. اور دیکھو جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے میں اس کو تم پر نازل کروں گا، لیکن جب تک تمہیں عالم بالا سے قوت کا لباس نہ ملے اس شہر میں ٹھہرے رہو. آمین. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی خاص برکت ہو. اب یہاں پر خداوند یسوع مسیح اب اپنے ان 12 شاگردوں کو پکا اور سچا پھر سے جب ان کے ذہن کو کلام مقدس کے مطابق کھولا. اس سے پہلے بھی خداوند یسوع مسیح ان کے ساتھ کتنے سال رہا؟ 3.5 سال ان کو تعلیم دیتا تھا، ان کو تیار کر رہا تھا. لیکن ان 40 دنوں کے بعد خداوند یسوع مسیح جب زندہ ہوئے تو اس سے پہلے والی آیتوں میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے ذہنوں کو کھولا تاکہ وہ کلام مقدس کو سمجھے اور میرے نام کی گواہی دے. اور جب انہوں نے یسوع کے وعدے کو اپنے اوپر آتے اور نازل ہوتے ہوئے پاک روح کو آج اپنی زندگیوں میں نازل ہوتے ہوئے ان کی زندگیوں میں آج کیا ہونا تھا؟ ایک بڑا معجزہ ہونا تھا. جیسے ہماری بہن کمل نے تلاوت کی عید پینتیکوست کے حوالے سے، یہ عید پینتیکوست جو منائی جاتی تھی یہ یہودی کلچر میں ایک عید بہت بڑی ہے. ہمارے لیے آج وہ عید پینتیکوست کا ہم دن اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ آج پاک روح کی جماعت جو خدا کے وعدے کے مطابق 120 کی جماعت ایک کمرے میں ایک جگہ ایک چرچ کی صورت میں دعا کر رہی تھی. اور جب خدا کا پاک روح ان پر نازل ہوا تو وہ کیا کرنے لگے؟ ان کو دکھائی دی غیر زبانیں اترتی ہوئی. اور جتنے بھی 120 کی جماعت تھی ہر ایک اپنی اپنی بولی میں وہ کلام کو کیا کر رہا تھا؟ سمجھ رہا تھا، سن رہا تھا اور اس پر عمل کر رہا تھا اور خدا کے طالب ہو چکے. اور جب ہم جانتے ہیں کہ خدا کا روح تو واقع ہی جیسے ہمارے بھائی لیڈنگ کرتے وقت بتا رہے تھے، پیدائش کی کتاب میں کیا پہلی 2 آیتوں میں لکھا ہے خدا نے ابتدا میں کیا کیا؟ زمین اور آسمان کو بنایا. خدا نے کیا کیا؟ زمین اور آسمان کو بنایا. اور زمین کیا تھی؟ اور سنسان تھی، ویران یعنی جنگل بیابان، نہ بندہ نہ بندگی ذات، نہ کوئی وہاں پر ایسی چیز نظر آئے گی. اگر کوئی بندہ ہوگا بھی تو وہ کہے گا میں کون ہوں؟ وہ تو ایسے ہی. سب سے پہلے خدا نے جب وہ پانی کی سطح پر کیا کرتا تھا؟ خدا کا روح جنبش کا مطلب ہے کہ حرکت میں گھومتا پھرتا تھا. خدا بھی ایسے چلتا پھرتا گھومتا پھرتا پانی کے اوپر جاتا ہوا. یہاں پر آپ کو ایک بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ روح کیا ہے؟ خدا. یہاں پر ہمیں واضح بتایا گیا ہے کہ روح ہے خدا، یعنی پانی کی سطح پر وہی جنبش کرتا ہے، وہی گھوم سکتا ہے، وہی ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جاتا ہے. میں بچپن میں 1-2 دفعہ کہتا تھا کہ اگر کوئی بری روح آ جائے گی نا تو ہم بھاگ جائیں گے. لیکن یہ خدا کا پاک روح جب آتا ہے نا تو کوئی بھی بھاگتا نہیں، اس پر مسا آتا ہے، اس پر نازل ہوتا ہے. وہ اپنی نہیں بلکہ خدا کی باتیں تہ تک بیان کرنے کی قوت رکھتا ہے. اور جب ہمیں قوت ملے گی، طاقت ملے گی، دلیری ملے گی تو ہم خدا کی گواہی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. ہاللیلویا ہاللیلویا. یہاں پر جب خدا کا پاک روح فرسٹ ٹائم جن بندوں پر بندیوں پر نازل ہوا وہ بندے اور بندیاں پاک روح سے بھر گئے. ہاللیلویا. مقدس متی کی انجیل میں کیا لکھا ہے
उसकी पहले बाब की 18 से 20 तक आयत में पढ़े तो अब क्या है, यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले वो क्या थे, रूह कुदस से वो क्या हुई, रूह कुदस से पहले वो क्या थे, इकट्ठा होने से पहले वो रूह कुदस की कुदरत से हामला पाई गई। और अब जब हम ईमान रखते हैं कि जिसकी हम आज इबादत करते हैं, जिसके वादे के मुताबिक हम आज ठहरे हैं, वो तो पेट से ही जब उसकी यहाँ पर विलादत होने वाली थी, पैदाइश होने वाली थी, वो माँ के पेट ही से रूह कुदस से बड़ा हुआ पाया। हालेलुया। और हम ईमान रखते हैं, और जैसे ही आगे फरिश्ते ने ये पैगाम दिया था, किसको, मुकद्दसा मरियम को। लूका की इंजील में ये बहुत अच्छी और खूबसूरती के साथ इस आयत को लिखा गया। पहले बाब की 38 आयत है, हम उसको पढ़ेंगे। 35 आयत जहां पर लिखा है, और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा कि रूह कुदस तुझ पर नाज़िल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो मौजूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। हालेलुया। वो क्या होगा, जब रूह कुदस तुझ पर क्या होगा, नाज़िल होगा, तो वो इस कुदरत से क्या होगी, हामला होगी। और जब हामला हुई तो क्या आगे वादा किया गया, वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। और बल्कि जब हम बाप से फरियाद करते हैं, बाप के सामने झुकते हैं, बाप से मिन्नत करते हैं, आज भी हमारी दुआ करनी हमें आज तक नहीं आई। हम दुआ करते हैं, लेकिन दुआ का जो हमारे खुदा यीशु मसीह ने हमें सिखाई, समझाई, करने की हमें तरतीब बताई, हम उस तरीके से दुआ नहीं कर रहे। हम कुछ लोग, उसमें मैं भी हूंगा, हम कहते हैं यीशु मसीह तू हमारा बाप है, ऐ खुदा यीशु मसीह तू हमारी मदद कर, ऐ खुदावन यीशु मसीह तू हमारे साथ साथ चल। लेकिन जब हमारे खुदावन यीशु मसीह के शिगिर्दों ने उससे कहा, जैसे यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को सिखाई है दुआ, वो हमें भी सिखा। तो खुदावन यीशु मसीह ने उनको एक दुआ सिखाई थी। क्या तरीका बताया था, यीशु मसीह का नहीं, उसने कहा था कि एक ऊपर है, ए हमारे बाप। उसने उसी वक्त कहा था कि मेरे ऊपर एक है। जैसे भाई हमें बताता रहा लीडिंग में कि बाप, बेटा, पाखरू तीनों एक हैं, लेकिन काम अलग अलग तरीके से करते हैं, क्योंकि बाप के पास पूरा अख्तियार है। और वो अख्तियार जब बाप के पास था, तो उसने अपने बेटे को जब इस दुनिया में रूह कुदस की कुदरत से इस दुनिया में भेजा, उसने उसको वो अख्तियार। और जब शागिर्दों ने सवाल किया कि बाप को हमें दिखा, तो क्या कहा, यहां पर एक हो गया। हालेलुया, जोरदार तालियां। क्योंकि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, और बाप के को जब उसने देखा तो वहां पर वो वादा करता है। वहां पर क्या वादा करता है, यूहन्ना की इंजील की ये तलावत लिखी थी। अगर यूहन्ना का इंजील 14 बाब हम पढ़े ना, इसमें पूरी तसल्ली मिलती है। पूरा जो पैगाम है वो तसल्ली का कलाम है। पूरा कलाम जैसे खुदा ने पहले कह दिया, तुम्हारा दिल न घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो। तो यहां पर जब यूहन्ना की इंजील की ये कितनी 16वीं आयत पढ़ेगा, क्या लिखा है, मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अबद तक तुम्हारे साथ रहे। आमीन। कि मैं बाप से क्या करूंगा, दरख्वास्त करूंगा,
अब दरखास्त वो बाप से कर सकता था क्योंकि उसको पता था मैंने अब हमारे बाप सिखाया है इनको कि बाप तुम्हारे पास है, और वो बाप से क्या करेगा, दरखास्त करेगा, और जो तुम्हारे साथ अमर तक रहेगा। खुदा यीशु मसीह को पता था कि मैंने यहां पर अब तक नहीं रहना, मैंने यहां पर से चले जाना है, मैंने अपने लोगों को तैयार कर दिया है। 40 दिन तक फिर वही तालीम वो दोबारा से अपने शागिर्दों को सिखाते हैं, समझाते हैं। और पतरस कितनी 120 की जमात को वो समझा रहा था, बता रहा था, और जो इस कलाम को अभी तक नहीं समझे थे वो समझते थे कि आज ईद पेंतिकोस्त है, आज सब कुछ चलता है, आज ईद है, हम भी कहते हैं हमारी भी ईद होगी तो हमारा भी सब कुछ चलता है, हमें भी सब कुछ जायज है क्योंकि एक ही दिन आता है साल से, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। इतना एक ही दिन आता है ईद तो हुण भी सानू रोको टोको तो की फायदा, कानून जाए करन दो। हम यही सोचते हैं और इसी तरीके से हम खुदा के रूह को अपने अंदर आने नहीं देते। ईद है, ईद मनानी है, लेकिन ईद को समझ के मनाना है। यीशु मसीह भी ईदों में जाता था, शादियों में जाता था और तमाम तर बातों को देखता था, लेकिन वो हर एक को कलाम की रूह से जवाब दिया। यहां पर पतरस ने भी उनको जवाब दिया था, लेकिन अब जब ये वादा है कि मैं तुम्हें क्या करूंगा, दूसरा मददगार दूंगा, 26 आयत पढ़े बोला इसी बात की। लेकिन मददगार ये नहीं रूहुल कुद्स जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। आमीन। क्या है? लेकिन मददगार। अब जब मददगार का वादा सच्चा है, अब मददगार ही आपके पास आएगा। यसू ने नहीं आना, यसू ने उदो ही आना जदों तुसी तैयार हो जाओ। 10 कुआरियां तो केड़ियां हन, 5 कुआरियां थियां ते चंगियां ते समझदार ते अपनियां हर वक्त मशालां ते तैयारी ते रहन वालियां ते अपने आप नूं सवार के रखण वालियां, अपने आप नूं संभाल के रखण वालियां, ओही दूल्हे दे इस्तकबाल नूं गईयां। हालेलुया। और अब मददगार आना है, यानी रूह कुद्स जिसे बाप क्या करेगा, मेरे नाम से, यीशु के नाम से बाप भेजेगा। यहां पर आ रहा है वो ही पैटर्न जो यीशु ने सिखाया, बाप यीशु के नाम से भेजेगा। और यीशु ने वादा कर दिया है कि मेरे पास तो अख्तियार है, मैं जाऊंगा और वो आएगा, अगर मैं ना जाऊंगा तो वो दूसरा मददगार आपको नहीं मिलेगा। यहां पर आज रसूल भी क्या वो हट गए थे? उसमें मुकस्सा मरियम भी बैठी हुई थी और भी बहुत सी औरतें थी और उसके शिगिर्द भी थे। 120 की जमात तो नहीं थी, शिगिर्द कितने थे? 11 रह गए थे। लेकिन वो जो कलाम को सुनते थे, कलाम को समझते थे, कलाम में चलते थे, कलाम की राहों पर बयान करते थे, वो ही उस 120 की जमात में बैठे। और उन पर क्या हुआ था? आप निकाल दें ईमाल 2 बाब। उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर 8 ठहरी। और चौथी है, और वो सब रूह कुद्स से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। आमीन। अब यहाँ पर रूह ने उन्हें बोलने की क्या की है? ताकत बख्शी। आगे जब ताकत आ गई है, ये ताकत बख्शी है। पहले, इससे पहले जो मैं हवाला आपसे कोट कर चुका हूं, बता चुका हूं, वहां पर कुव्वत थी। कुव्वत और ताकत में कुछ फर्क है? एक ही चीज है ना। बाप और बेटे में भी फर्क नहीं, पाकरू में भी फर्क नहीं आएगा। अब वो ताकत बख्शता है। अब जब पाकरू आएगा ना, सबसे पहले आपकी मदद करेगा। सबसे पहले क्या करेगा? आपकी मदद करेगा, आपको तसल्ली देगा। 7 बातें होंगी, आपने याद रखनी है। 7 बातों को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं।
अभी मैंने 2 बातें आपके साथ शेयर की हैं। क्या करेगा? पाक रूह जब आएगा मदद करेगा। दूसरे नंबर पर पाक रूह आएगा तसल्ली देगा, जो हर एक को चाहिए। तसल्ली किसी और जात में नहीं, पाक रूह के वसीला से मिलेगी, खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मिलेगी। मदद भी बाप की तरफ से, बेटे की तरफ से, पाक रूह की तरफ से मिलती है। तीनों चीजें मिल जाती हैं, उनका काम एक हो जाता है। और जब काम एक हो जाता है तो हमें क्या है? अब सबसे पहले क्या मिली थी हमें? हालेलुया, आप मेरे साथ ही हैं। एक बहन को पता था आपने बोलना है। दूसरा क्या मैं बोला है? तसल्ली। ये इसलिए मैं कर रहा हूं कि आज कुछ तो आप लेकर जाएंगे, पाक रूह लेकर जाएंगे, तसल्ली लेकर जाएंगे, मददगार लेकर जाएंगे। आगे आगे जाकर वो आपको क्या करेगा? जब आपके पास ये 2 चीजें हैं तो आप क्या करेंगे? एक गीत गाया, दाऊद दी तरह मैं नचा है। दाऊद की तरह ही किया है ना? जब खुदावंद का रूह मुझ पर आएगा, मैं दाऊद की तरह नाचूंगा, मैं दाऊद की तरह बजाऊंगा, मैं दाऊद की तरह तारीफ करूंगा। हालेलुया। आप सब भी आज जब पाक रूह आएगा तो ये काम कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास क्या है? मदद आ गई है, आपके पास तसल्ली आ गई है। जब आपके पास मदद और तसल्ली आ गया तो आप रहनुमाई में चलना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। जब आप रहनुमाई में चलना शुरू हो जाएंगे तो खुदा आपकी क्या करेगा? आपके साथ साथ होकर चलेगा, आपकी हिफाजत करेगा। जैसे दाऊद कहता है, हाँ मौत के साए की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरता, क्योंकि तू मेरे साथ है, तेरा रूह यानी मेरे साथ है। ये 2000 साल पहले वो कहता है, उस वक्त भी यीशु उसके साथ था। 4000 साल पहले भी जब कलाम मूसा से लिखवाया गया, उस वक्त भी यीशु था, उस वक्त भी खुदा का रूह उनको गाइड करता था, आने वाली तमाम तर बातें उनको बताता था, आने वाले तमाम तर हालात उनकी समझ में आते थे, उनके साथ साथ वो चलता था। और आज भी आपके साथ रहनुमाई करने वाला है। आज भी जब आप इन तमाम बातों में आगे बढ़ेंगे तो खुदा खुद क्या करेगा? आप लोगों की वकालत करेगा। हालेलुया। वकालत क्या है? वकील ही करता है। जो कोई खूनी, चोरी और किसी ज़िना ते या किसी भी और ऐप ते पकड़िया जाए ना, ते असी वकील कर लेना, ते यीशु तुहाड़ा वकील फ्री ते तुहानू मिल जांदा है। लेकिन जब आप उसकी रहनुमाई में चलेंगे, जब आप उसकी तसल्ली में चलते हैं, जब आप कहते हैं कि यीशु तू ही मेरा तसल्ली का खुदा है, तू ही मेरा बाप है, तू ही मेरे साथ है, तू ही मेरे हर एक काम में मेरी हिफाजत निगहबानी करता है। क्योंकि जब आप ऐसी बातों पर गौर करना शुरू कर देंगे, जरूरी नहीं कि गैर जुबान दी कोई नहीं, ठीक है, मिलती है, वो भी बुरी नहीं, मना भी नहीं करते, लेकिन गैर जुबान का ही नहीं पाक बपतिस्मा, आप पर ऐसा बपतिस्मा भी आ सकता है। आप खुदा के सामने झुकते हैं, आपके आंखों से आंसू आएंगे, आपके जिस्म से पसीना बहेगा, आप खुदा की हर रोज दुआ करना शुरू कर देंगे, कलाम पढ़ना शुरू कर देंगे। जब आप उसकी रहनुमाई देंगे और वो आपकी वकालत करनी शुरू कर देगा। हालेलुया। और आज आपका वकालत करने वाला सच्चा है, और वो कहता है कि अगर सच्चाई का रूह मैं तुम्हारे अंदर डालूंगा तो मैं सच्चाई से बाप के सामने तुम्हारी दरखास्त करूंगा कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा चाहने वाला, मेरा तालब मुझसे मोहब्बत करता है, तू इसकी हर खता, हर गुनाह, हर गलती, हर लापरवाही मुआफ कर दे। हालेलुया। क्योंकि जब हम जानते हैं, कितनी गल्लां हैं, 7 बातें करूंगा मैं, अभी 4 बातें हुई हैं, और मैं पूछ भी लूंगा बीच में, आप मेरे साथ हैं, मैं आपके साथ हूं, और खुदा हमारे साथ है। जब हम ऐसा सीखेंगे, समझेंगे और दूसरों तक आपने कलाम को पहुंचाना है, तो जब आप ऐसी वकालत करने वाले के साथ
तलब कर लेंगे, जो सच्चाई से आपकी वकालत करता है, तो वो क्या करेगा? क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शिफायत करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। हालेलुया। अब जब आपके अंदर पाक रूह आएगा ना, और आप पाक रूह को कबूल करेंगे, आप पाक रूह को अपनी जिंदगी में वेलकम करेंगे, तो वो आपकी शिफायत ऐसी आहें भर भर कर खुदा के सामने पेश करेगा कि मेरी बेटी को औलाद नहीं, मेरे बेटे को आज बहार है, मेरे बेटे को आज किसी तरह की कोई ऐसी प्रॉब्लम है, उसके पास जॉब नहीं, उसके कानों की प्रॉब्लम है, उसकी आंख की प्रॉब्लम है, उसके हर एक कैंसर को वो जानता है, हर बीमारी को जानता है। जब पाक रूह आएगा तो आपकी हर तरह की बीमारी, कमजोरी, परेशानी, लापरवाही, सुस्ती को माफ करेगा, क्योंकि हमारी शिफायत करने वाला सच्चा है। और हमारे जब शिफायत करने वाला सच्चा है तो उसका वादा क्या है? दूसरा मददगार बख्शूंगा तो क्या होगा? मैं तुम्हारे साथ साथ रहूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हारे साथ साथ रहूंगा, तुम्हारे अंदर रहूंगा, तुम्हारे साथ साथ हर एक खतरनाक रास्तों में चलूंगा। अगर आपकी जिंदगी में अगर बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी आ जाएंगे तो वो भी वैसा रहता, क्योंकि जब कोई ईमान के साथ दुआ करता है, कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था, जब तुम ईमान के साथ दुआ करोगे, अगर इस पहाड़ से कहोगे कि तू यहां से फिर कर समुद्र में जा पड़, तो वो तुम्हारा कहना मानेगा। जब आप ईमान के साथ, यकीन के साथ, भरोसे के साथ, अपने शिफायत करने वाले के साथ चलते हैं, वो आपके साथ, अगर आप आज उसके साथ एक कदम चलते हैं तो वो क्या है? ब्लेस करने वाला खुदा है, बरकत देने वाला खुदा है। वो एक कदम नहीं बल्कि आपसे 100 कदम और आगे निकल कर आपके रास्तों को क्लियर करता है, ताकि मेरे रास्तों पर चलकर मेरा बेटा, मेरी बेटी सलामत जगह पर पहुंच जाए, हमवार जगह पर पहुंच जाए, हिफाजत वाली जगह पर पहुंच जाए, और जिसका वादा मैंने किया है वो इसके साथ है। अगर मैं जाता हूं तो उसने हमें यतीम नहीं छोड़ा। हालेलुया। वो अपने वादे में सच्चा है, वो बयान करता है। जब आपके पास ये तमाम चीजें आ चुकी हैं तो अब आपको क्या है? पहला क्या पड़ा था? कुव्वत, फिर ताकत। अब ताकत बख्शने वाला आपके साथ है। हालेलुया। ताकत बख्शने वाला कौन है? अभी आपने पढ़ा, रूह कुद्दस। रूह कुद्दस, रूह कुद्दस क्या है? आपको ताकत बख्शता है, आपके साथ चलता है, क्योंकि ये उस यूहन्ना ने भी उसके बारे में गवाही दी थी कि जो मेरे बाद आएगा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, बल्कि जो मेरे बाद आएगा वो तुम्हें रूह कुद्दस से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। और खुदा का वादा सच्चा है, खुदा आपके साथ रहना चाहता है। आज कितने हैं जो कहते हैं कि मैं खुदा दे नाल नहीं रहना, उन्हें मेरे काम मैनू प्रॉब्लम ते पाया लगे है। मैं भी किसी तरह में ऐसी सोच रखता था, ये नहीं, आप नहीं, बल्कि हम सब क्या है, ऐसी सोच रखते हैं। लेकिन जब आपके पास रूह का फल आता है ना, रूह का फल, जो आप रूह के फल के मुताबिक चल सकते हैं, रूह के फल के मुताबिक आप जिंदगी बसर कर सकते हैं। जैसे आपके लिए खुदा ने 10 हुक्म दिए थे, शरीयत के हुक्म तो बहुत ज्यादा है, कि बहुत से ज्यादा 613 तक चले जाए यार। ये 10 साल हासिल है, शुरू तो बचपन तो 10 ही सीखे जी, तो 10 पे अमल करने तो वो ही नहीं पूरा होता पे। और रूह के फल जो है ना, रूह का फल वो 9 है, एक कटा देता है जैसे नहीं ना चल गए, एक कटा देता है जैसे एक हुक्म सन 10 ते फल जड़े में ना 9 कर देते। गलतियों का उसका 5 बार उसकी 22 आयत में क्या लिखा है? मगर रूह के फल मोहब्बत, खुशी, रूह का फल है, रूह का फल मोहब्बत, खुशी,
इत्मीनान, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिलम और परहेजगारी है। आमीन। कितने हैं यहाँ पर? 9 फल है। 9 फल। एक दफा मैंने ये पहले भी शायद आपको समझाया होगा या नहीं, अगर समझाया होगा तो थोड़े ज़हन ते आएगा, जब नहीं तो आज फिर से समझ लांगे तो ये पक्का हो जाए। खुदा का कलाम अब तक क्या है? आपके साथ रहेगा। रूह का फल जो है, सबसे पहले क्या है? हम मोहब्बत क्या है? कर सकते हैं कि नहीं? मैं तो कहता कि मैं अपने बच्चियां ना, बीवी ना, माँ प्यो ना, भैन भरावां ना, है सारे ना मोहब्बत करना जी। कलीसिया ना सब तो वध, खुदा दे लोकां ना सब तो वध, खुदा दे सारे कम्मा तो की। ये जब मैं कर सकता हूँ इंसान होते हुए, तो आप भी यही करते होंगे। आप भी दूसरा काम तो नहीं करते। आई लव यू जीसस कहना कोई आसान है? तो मुश्किल है। सब कह सकते हैं, क्या कहें? हालेलुया। आप कर सकते हैं। जीसस से पहले प्यार करें, फिर आपको जीसस प्यार करना सिखाएगा। यीशु प्यार करना सिखाता है, क्योंकि उसने कहा कि मैं मोहब्बत हूं। यीशु ने कहा था, किसी और ने नहीं कहा, क्योंकि वो कहता है कि वाकई उसकी मोहब्बत का हमें कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती। उसकी मोहब्बत की एक खूबी बयान करें तो दिन से रात भी गुजर जाए ना, दिन भी गुजर जाए ना, तो हम उसकी उस मोहब्बत की खुशी को बयान नहीं कर सकते। उसने मोहब्बत कैसे की? यूहन्ना दी इंजील 13 बाब दी 16 की, ये बड़ी मशहूर, क्योंकि खुदा ने जहां से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा हालेलुया, तलाक ना हो बल्कि क्या है? खुदा ने मोहब्बत रखी तो यीशु ने आगे की कीता, उन्हें किया दुनिया से मोहब्बत ना रखो। ये कल एक भाई ने ये सिखाया, दुनिया से मोहब्बत रखोगे, ये इसमें कोई फर्क है, डिफरेंट है। अभी कहने दुनिया ना मोहब्बत ना रखो, तो दुनिया तो हन क्यों है, पूछ करके चली जाना पड़ेगा। पलूस भी यही कहता है, मेरा इस दुनिया में रहने का जी नहीं करता, अगर मैं पूछ करके तेरे पास आ जाऊं तो उससे बेहतर है। लेकिन खुदा के लोगों को तब्दील करने के लिए मेरा इस दुनिया में रहना बेहतर है। अगर हम इस दुनिया में रहेंगे तो खुदा का कलाम करेंगे। मोहब्बत के बाद है खुशी, जो किसी ने नहीं पता। खुशी क्या है? किसी बंदे का भी नाम था खुशी भाई। तो एक दिन आ गया घर में, ओ भाई खुशी आ गया, भाई खुशी आ गया। यार खाने का आपने कभी खुशी नहीं आई थी, फिर खुशी जब ऐसा हुआ तो उसने कहा मैं वो भाई या खुशी, वाकई उसके घर, उनके घरों में बहुत ही गम, फिक्र, गुर्बत चल रही थी, और वो तरसते थे खुशी के नाम से कि खुशियां लोगों किंज मिलदियां ने। जैसे मैंने पहले भी बताया कि हम अक्सर ये कह देते हैं, लेकिन आप खुशी दे सकते हैं उन लोगों को जिनके पास नहीं। अपनी खुशी हम दे सकते हैं। अगर हमारे पास आज 2 रोटियां हैं तो एक उसको देकर उसको खुश कर सकते हैं। अगर 2 कुर्ते हैं तो एक देकर उसको खुश कर सकते हैं। यीशु मसीह की असली तालीम ये है, असली तालीम ये जिस पर हम अमल नहीं करते, हम दूसरी तालीम पर चले जाओ। खुदा ने कहा है जो भूखा है उसको खाना खिला, जो प्यासा है उसको पानी पिला, जो नंगा है उसको कपड़ा पहना। ये असली तालीम थी। और जब इस असली तालीम को हम भूल कर दूसरी तालीमों पर चलते हैं तो हमारे पास से भी बरकत, खुशी खत्म हो जाए। आप खुशी दे सकते हैं, इत्मीनान दे सकते हैं, तहम्मुल दे सकते हैं, मेहरबानी कर सकते हैं, नेकी कर सकते हैं, ईमानदारी कर सकते हैं, हिल कर सकते हैं, परहेजगारी भी कर सकते हैं। आप ये सब कुछ कर सकते हैं और खुदा आपको ढेरों बरकतों से मालामाल कर सकते हैं जब आप इन वादों पर चलते हैं। और आज ईमान के साथ, यकीन के साथ अपने आप को आज तैयार कर ले कि आज खुदा के पाक रूह को जो उसने वादा किया था कि मैं आज दूसरा मददगार दूंगा, बख्शूंगा, आपके अंदर आ जाएगा। आप खुशी से समाएंगे,
آپ بتائیں گے, آپ اس کے گواہ ہو جائیں گے. اور جب پاک روح جن جن بندیوں پر آیا ہے وہ ہمیشہ دوسروں کو خوش کرتے ہیں. اعمال 3 باب نکالیں, وہاں پر پہلی 3 آیتیں پڑھ لیں تاکہ آپ کو اسٹوری پوری کور ہو جائے گی. پترس اور یوحنا کیا کر رہے تھے؟ پترس اور یوحنا دعا کے وقت یعنی تیسرے پہر ہیکل کو جا رہے تھے اور لوگ ایک جنم کے اندھے کو لا رہے تھے جس کو ہر روز ہیکل کے دروازے پر بٹھا دیتے تھے. لنگڑے کو لا رہے تھے. اور کیا تھا؟ جس کو ہر روز ہیکل کے خوبصورت دروازے پر بٹھا دیتے تھے جو خوبصورت کہلاتا ہے. اور آگے پڑھے ذرا. تاکہ ہیکل میں جانے والوں سے بھیک مانگے. آمین. اب یہاں پر جب وہ خوبصورت دروازے کے پاس بٹھا دیے کرتے تھے, یعنی خوبصورت چرچ ہیکل, وہاں پر جو ہیکل بنی تھی وہ خوبصورت تھی, اور وہاں پر جو تھے نا ایماندار جو مانتے تھے, اور اگر کوئی اس کلچر پر نہیں چلتا تھا اس کے اوپر الزام بھی لگا دیتے تھے یہودی کہ یہ یہودی نہیں, یہ کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے, تو اس کو اوپر کیا کرتے تھے؟ الزام لگا کر اس کو سزا دیتے تھے. اور یہاں پر بھی وہ پترس اور یوحنا جا رہے ہیں, ہیکل کے اندر جاتے ہوئے جنم کا لنگڑا ہے, چل پھر نہیں سکتا, اور جب وہ ان سے بھیک مانگتا ہے, ان سے فریاد کرتا ہے, تو وہ کیا کہتے ہیں؟ 6 آیت میں پڑھے ذرا, کیا لکھا ہے؟ پترس نے کہا چاندی سونا تو میرے پاس ہے نہیں, اور جو میرے پاس ہے وہ تجھے دیے دیتا ہوں. یسوع مسیح ناصری کے نام سے کیا ہے؟ اٹھ اور چل پھر. آمین. اب کیا ہے؟ یہ ان کو پاک روح ملا تھا یسوع کے بعد جانے, اور جب یہ پاک روح ملا تو ان کو قوت ملی, طاقت ملی, برکت ملی, اور وہ بانٹ رہے ہیں. وہ اپنے پاس رکھ تو نہیں رہے. کہتے ہیں پیسہ چاندی سونا روپیہ کچھ نہیں, تو اگر جنم دندا ہے تو تو اج تک دوڑ کے نہیں ویکھیا, چل کے نہیں ویکھیا, تے اسی تینوں کی کہنے اٹھ چل پھر. ہاللیلویا. آج آپ اٹھنا چاہتے ہیں, آپ آج چلنا چاہتے ہیں. ہم بھی بہت دفعہ یہ کلام سن چکے ہیں, میں تفصیل میں نہیں گیا. بابل کے برج پر غیر زبان اتری, عید پینتیکوست کے دن غیر زبان اتری. آج جب میں پھر سے اسٹڈی میں گیا, میں نے بھی وہی بنایا تھا. جب میں پھر اسٹڈی میں گیا, آج وہ کہتے ہیں آج میں تم پر اتروں گا, آج میں تجھ پر نازل ہو جاؤں گا, آج میں تیرے لوگوں پر نازل ہو جاؤں گا. ایمان رکھے تاکہ وہ ایمان کے ساتھ میری پرستش کرے, میرے ساتھ چلے پھرے, اٹھے بیٹھے, تو میں ان کو 1 نہیں 30 نہیں 60 نہیں بلکہ 100 گنا پھل دے دوں گا, اجر دے دوں گا, برکت دے دوں گا. اور وہ جب ایمان کے ساتھ چلیں گے تو خدا آپ کے ساتھ ہوگا, خدا آپ کے اندر ہوگا. اور کلوزنگ کی طرف آئیں گے. جب خدا ہمارے ساتھ ہوگا, خدا ہمارے اندر ہوگا, یہاں تک سمجھ آ گئی آپ کو. لمبا کروں گا تو شاید یہ بھول جائیں, کیونکہ کلام میں بہت شارٹ کرنا چاہتا تھا کہ تاکہ آج 2-3 چیزیں آپ سیکھ جائیں. 7 چیزیں میں پوچھ سکتا ہوں. آیت میں لکھا ہے کیا؟ اور دیکھ میں جلد آنے والا ہوں, مبارک ہے وہ جو اس کتاب کی نبوت کی باتوں پر عمل ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا. 7 آیت پڑھے سر. دیکھو میں جلد آنے والا ہوں, مبارک ہے وہ جو اس کتاب کی نبوتوں کی باتوں پر عمل کرتا ہے. آمین. کیا ہے؟ دیکھو میں جلد آنے والا ہوں. پھر بھی وعدہ کر رہے ہیں, دوسرا مددگار دے کے بھی پکا وعدہ کرتا ہے, آخری وقت پہ وعدہ کر رہا ہے. اپنے اس رسول دے مطابق لکھوایا, سمجھایا کہ مددگار تواڈے کول ہے. ان لوگوں نے پھر تسلی دی. کیا ہے؟ میں جلد آنے والا. کون کون تیار ہے خدا کے استقبال؟ کون کون ہے جو خدا کو ہوا میں استقبال کرنے کے لیے تیار ہے؟ اگر آج آپ تیار ہیں,
अगर आज आप उसकी आवाज को सुनकर अपने अंदर कबूल करते हैं, अगर आज खुदा के साथ आप चलने के लिए तैयार है कि वो वाकई ही जल्द आएगा, तो क्या होगा? मुबारक है वो जो इस किताब की बातों पर क्या करेगा? उठ जाए, खड़े हो जाएंगे, आंखों को बंद कर दें, खुदा को आवाज दे, पाकरू को आवाज दे। पाकरू आपके लिए तैयार है। ईमान के साथ, यकीन के साथ आंखों को बंद कर ले। हर कोई जो आंख खुली होगी वो खुदा का मुकाबला करती है, वो खुदा से मुकाबला करती है। आज हम खुदा से कहेंगे कि आज जो तेरे कलाम को हमने सुना है, आज जो तेरे पाक कलाम को हमने कबूल किया है, आज तू अपने वादे के मुताबिक ये सुबह मैं तुझसे मिन्नत करता हूँ, तेरा खादम होते हुए यहोवा अपने चर्च के लिए, अपने लोगों के लिए और ये सुबह अपने खानदान के लिए तुझसे मिन्नत करता हूँ कि आज अपना पाक करूं इन पर नाज़िल